listening to Master Ji. Master Ji just made the journey. Motivational life guide who transformed the lives of thousands with the power of his lectures. What is the psychology behind a depressed person? तो मुझे लगता है कि एक तो अधूरी ख्वाहिश है. Spiritual journey is very misunderstood. Really, it is not about believing in God, but obeying. क्योंकि भगवान में विश्वास करना बहुत ईजी है, मगर भगवान जो बोल के गए हैं उस पर चलना उतना ही मुश्किल है. स्पिरिचुअलिटी खुद की मैल को साफ करना है. जैसे आपने बोला अंदर से खाली होना है. आप खाली कैसे होगे जब वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज या बातें आपने अपने अंदर बसा लिए हैं, उसको घर बना लिया है, उसको खाली करना है, उससे फ्री होना है. तो वो मदरली लव उनसे रिसीव हुआ और उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे गुरु मानूं या मुझे कुछ ये करो. He just said that listen to a few lectures, वानीस जो उनके प्राण है. He said 30 days में I had no looking back. तो ये सारी जो स्टोरीज है ना, आपको एक मैसेज देना चाह रही हूँ, ह्यूमैनिटी को एक मैसेज देना चाह रही हूँ. वो मैसेज है क्या? मैं रोज एक घंटा सुनती हूँ. एंड आई थिंक मास्टर जी जस्ट मेड द जर्नी सो इजी. One lecture a day, that's all you need to listen. And trust me, you need a version of yourself that you didn't even know existed. Hi everyone, welcome to Mini Pods with Master G's community. हम लोग यहाँ अपने experiences और Master G के given solutions के बारे में बात करना चाहते हैं. In the last 8 months, we've been able to do 75 events, and through that, we have received some questions, and we thought, why shouldn't we give an answer to you directly through YouTube or social media? So I would like to introduce Gurashi Singh, singer YouTuber. And that is Vedantika Puri. She's a celebrity life coach. So today's first topic, जिसके लिए हमको maximum questions आते हैं, which is how to deal with relationships. Absolutely. I think relationships के बारे में अगर आप मेरा take जानो, it was completely different before meeting Master Ji, and now it's completely different. Relationship, all I thought was about expecting from someone कि ये मुझे ये देगा, or I'll get something from someone, be it emotional support, be it money related stuff, be it, gifts. And that's what I thought was, like a great relationship. But then I finally realized after a few years of listening to Master Ji that the relationship is nothing but your relationship with yourself first. If you can't love yourself, you can't love anybody. What about you? So in my life, I have had very good relationships. Like I think my material, my maya in life is actually relationships, be it my relationship with my family, my friends, or having a companion from time to time. अगर family के बारे में बोलो, I think that's one of the toughest relationships you can have, because I think your karmic accounts with them is much heavier. तो उनके साथ रहना, उनको समझना, उनको आपको समझने में बहुत वक्त लग जाता है. Plus I think parents always have a desire कि उनके बच्चे उनके हिसाब से चले. Maybe they're not even conscious about it, but वो हमेशा एक form of pressure, expectation बना ही रहता है. But मैं दूसरों के parents को देखती हूँ तो मुझे लगता है still my parents are much better. In terms of relationship and companionships, I have had some fantastic relationships where we have built things through love, but कहीं ना कहीं वो ही प्यार कम पड़ जाता था. So my whole खोज was what is truly love, and it really got answered with Master Ji. I agree with you, It got answered with Master Ji, 100%. and he just told me very simply, love is not something you seek, love is something you become. आपको प्यार बनना पड़ता है life में. Amazing. Yeah, and I think every tip that he's given me and I've worked on, he's just taken me away from my expectations from people, my unforgiveness, my unacceptance, my extreme judgment. Because I'm a typical Sagittarius. I love with all my heart, but then I can really be this brutally honest, rude person. And I think I was breaking a lot of hearts because of this. And because of him, I've calmed down a lot and artistically put across my points in my relationships, because of which my relationships have also blossomed. Yeah. I think if you talk to me about this, like I was very fearful when it came to relationships. पहला fear था relationship में जाने का, ठीक है, और दूसरा था कि उससे बाहर कैसे निकलेंगे अगर वो person चला जाएगा तो. तो इस वजह से मैं avoid ही करता था कि relationship. And yeah, but then I understood that every relationship is different, and it's not even about the other person. It's only and only about you.
in your journey, you know, and how you shape yourself as a person, that much support you can give the other person. Otherwise you'll simply be parasitic कि मेरे को इससे ये चाहिए वो चाहिए और मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं उसका भी मूड खराब करूंगा और खुद का भी मूड खराब करूंगा, you know. So that was the ideology he changed. But you know, for that knowledge of life was very important. You know, जिसको ज्ञान कहा गया, spirituality कहा गया, knowledge of knowing your own self, कि यार पहले खुद को तो जानो. और वही तो मैं बताना, I wanted to intrude in this point कि when you say self, which self are we talking about? Yeah, I think right? that's I what. think that is the self Master Ji made us discover. सही बात है. This is not the self care की manicure, pedicure या फिर कहीं चले गए trip पे and you know I'm all about myself man. बस मैं खुद का ही देखता हूँ, खुद की चिंता करता हूँ. नहीं 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 नहीं. It's about the energy within you. It is about the soul within you. आज जिसको तत्व ज्ञान कहा गया गीता में कि ये जो सोल है, आप कहाँ से, आपकी आत्मा जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ चले जाएगी जब आप मर जाओगे. So when we got that knowledge of life in terms of birth, death, beyond death, beyond birth, तब चीजें थोड़ी सी समझ आई कि दिमाग की बत्ती जली कि अरे यार I am in a game, and in this game am I expecting too much from people? I shouldn't be. I shouldn't be. They're all characters, and you know, live and let live. So I started breathing. Right. I love that. I love that for you, and I've seen that transformation in the journey because as you said rightly कि प्यार में आप सेल्फिश नहीं होते हो, आप बहुत सेल्फलेस होते हो. एंड व्हेन वी से बिकमिंग लव, दैट इज सेवा, राइट? लाइक व्हेन वी डू सेवा फॉर समबडी, वो एक तरह का प्यार ही होता है. एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू ट्रूली स्टार्ट बिकमिंग लव. इट्स नॉट अबाउट हाउ समबडी फीड्स योर ईगो कि आपके हिसाब से चल रहे हैं, आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो रहे हैं. नहीं, कैन आई गिव दिस पर्सन अनकंडीशनली? Because हर scripture में दिया गया है love is unconditional, but nobody is unconditional. Everybody is transactional. And सबके कोई ना कोई, when we meet our friends also, discussions are all about अरे इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसको ये समझ नहीं आ रहा, मैं सही बोल रही हूँ, I am right, he is wrong, she is wrong. It is just a mess. So till the time, as you said, अंदर नहीं जा सकते, spirituality नहीं समझोगे, तो प्यार तो समझ ही नहीं पाओगे. But Vedantika, if you know, I think कुछ students का भी एक question था that how to deal with that attachment. आज इतने लोग heartbreak से you know they're dealing कि एक बार एक person चला जाता है ना, it's like a scar which remains in the heart. फिर वो किसी भी time पे you know बस बोतल खुली दारू की और बस शुरू हो गए उस time पे कि यार मेरा जो है दर्दे दिल दर्दे जिगर. What is your take on attachment, and what do you think Master Ji has taught us as a community, you know, you especially? I think what I learned from attachment is that it is a shinghar of this world, and I think it is very beautiful because it gives you a sense of responsibility towards another human being. And it's not only responsibility कि मेरे को इसके लिए ये करना है वो करना है, responsibility of being loyal, responsibility of being loving, responsibility of listening to somebody, have them seen, have them accepted, right? I think that comes from a sense of acceptance. But at the same time, how much of attachment do you need? And how are we really balancing that out? I don't think whether it is your attachment, whether it is your lust, whether it is your ego, whether it is your anger or greed are bad. We just don't know the balances in that. And I think with Master Ji, I have learned the balances. I'm not also a very detached person, to be honest with you, because I think God has created this world for us to experience it. So what I learned from Master Ji is flow state. Wherever you are, enjoy that relationship, enjoy that moment, enjoy that experience, and when you are where you are, flow out and be present there as well. Absolutely. So for me, attachment is really not a culprit. It's a culprit if I can't manage it, and if I am too needy as a person, or too insecure as a person, or too jealous as a person. That is what creates problems in attachments. Otherwise, वो तो दुनिया का श्रृंगार है यार. I think it's beautiful. I mean, I don't think I would be able to tolerate most people if I wasn't attached to them. Let's be honest. But because I have that, I come back to them, I serve them, and I love them because I have it in balance. Wow, that's amazing. That's amazing. Okay, so what's the next topic? I want to ask you one question. One question that I want to ask Gurashish, because I know somewhere he is battling that question a lot these days, which is pressure of marriage. Would you like to help the of course I want to speak my heart out on this, on pressure of marriage, because I think हम सबको ना लाइफ में जब तक
मतलब we always get guided by our parents, we always get guided by our friends, टीचर्स, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, और वो जो सुन सुन के कंडीशनिंग पैदा हो जाती है ना कि अरे यार 30 साल के पहले तो शादी करनी चाहिए, अरे यार बच्चे कब होंगे, अगर 30 आप 35 के हो गए अब तो बच्चे ही नहीं होंगे, या यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच द सोसाइटी इम्पोजेस ऑन यू नोइंगली और अननोइंगली। क्योंकि देखो ज्ञान किसी को भी नहीं है, वो अगर आप उनसे भी पूछो कि 40+ या 45 वालों से कितने लोग डिवोर्सेस से गो थ्रू कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस गो थ्रू कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो रह के भी साथ में नहीं है, कितने लोग रह के भी दूसरे पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। Absolutely. तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं किसी को भी वो राइट नॉलेज नहीं है कि वो गाइड कर सके, बट देखा सुनी बस यही, वहां से देखा, वहां से यहाँ की इंफॉर्मेशन वहां की। इसलिए जब तक मुझे ये नॉलेज ऑफ लाइफ नहीं थी कि ये मैरिज का कॉन्सेप्ट है किस लिए, कि इट इज नथिंग बट लाइक मास्टर जी टॉट अस दैट मैरिज इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट, एक व्यवस्था होती है, जैसे ऑफिस में एक व्यवस्था, प्रोटोकॉल्स, रूल्स, वैसे एक लाइफ के आगे बढ़ने के लिए एक कुछ प्रोटोकॉल्स, रूल जरूरी है। मेल फीमेल कम टुगेदर इफ यू वांट टू फॉर्म एन institution where you have children, where you have, you know, your own desires that you want to live. People want to have children, people want to have great houses, that's amazing. Yeah. But in my journey, when this self discovery became more prominent, I understood that wait, am I really wanting marriage, or is it that the society is wanting marriage for me, so I want marriage for myself, right? You know? So I could draw that line very distinctively that wait, whenever I want to get married I will, but I'm not getting pressurized by anybody, because I think financial independence is most important. Absolutely. क्योंकि आप एक ऐसे एरा में हो जहाँ पे आप साईं बाबा भिक्षा मांगने जा रहे हो, लोग दे रहे हैं, या बुद्धा भिक्षा मांगने जा रहे हो, तो आप बोलो मैं भगवान के लिए चल रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी के लिए चल रहा हूँ, तो nobody will support you financially, है ना? Because everyone is in this horde of, you know, collecting for themselves. So you need to be financially independent. But I think having said that, your marriage is completely an individualistic choice, but I agree. But learn to then responsibly execute that, be responsible enough to take care of the partner, and then if you desire kids, be responsible enough to take care of them. Invest your next 15-20 years and be ready to invest those 15-20 years into the institute of marriage. Not just financially, you have to take care emotionally, mentally, socially, physically, in every aspect. Like you have to be a present person, and I think I completely, like 10 on 10 resonate with you कि society से दिया गया था कि क्या मेरी ख्वाहिश थी. But I personally believe in the institution of marriage, but I believe that people are terrible these days. I don't think people should get married. You want companionship? Find companionship. Deal with the person. See how you can manage with each other. आजकल दो minds ऐसे मिलना बहुत मुश्किल है. Conditioning, programming, expectations, and social media has revealed so much to the world कि हम और कितने desires ले के किसी और पे डाल रहे हैं, we are not even realizing it. सच में Instagram couple goals कि उसकी लाइफ तो ऐसी है, 10 big goal, that's the only goal they are getting, 0 marks for displaying fakeness. Oh my god. Yeah, I think we should talk about that fakeness, how fake is the world becoming nowadays. I think जो आप एक person को देखते हो और वो दूसरे तीसरे दिन अलग होता है, तो वही होता है ना कि दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग. तो आई थिंक जहाँ तक मुझे भी समझ आया that you know until unless you don't have the knowledge about yourself, मैं अगेन उस पॉइंट पे जा रहा हूँ क्योंकि मास्टर जी ऑलवेज एम्फसाइज दैट, बट हमें लगा था यार ये हमारी एज ग्रुप के लिए नहीं है. जब मुझे भी ये नॉलेज मिलना शुरू हुई थी that why do I have to take the knowledge of self, ये आत्मज्ञान, ये you know सोल की नॉलेज, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, वन लाइफ यार, लिव इट ऑल, पियो खाओ पियो जियो, यही लाइफ का कॉन्सेप्ट था, है ना? बट देन आई रियलाइज्ड कि यार कुछ भी लाइफ में परमानेंट रहता ही नहीं है. बी इट फ्रेंड्स, 10th के बाद अलग फ्रेंड्स हो जाते हैं, 12th के बाद अलग फ्रेंड्स हो जाते हैं, कितने भी क्लोज फ्रेंड्स हो, कहीं ना कहीं किसी की शादियां हो जाएंगी, यू नो एक कोई भी मेरा परमानेंट साथी है ही नहीं इस दुनिया में. एंड देन व्हेन द डेथ विल स्ट्राइक वन डे, तो तब क्या होगा? ये सारा गेम प्ले जिसमें आप हो, ये सारा रिवील हो जाएगा कि कोई भी आपका साथी नहीं था. Then I started searching for the permanent self, and then the experiences that I had in that search, listening to Master Ji's lectures, his vanis, what he calls, it gave me that complete independence कि मैं तेरे साथ हूँ. He says कि मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ.
तो ऐसा लगा कि कोई हमारे साथ है इस खोज में, एंड देन दैट हेल्प मी। और फिर समझ आ गया कि यार जिस पर्सन को ये ज्ञान नहीं है ना, तो वो माया मीन्स ड्युअलिटी। आज वो इमोशनल है, कल वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। हाँ, आज कोई आपके साथ अच्छा है, कल वो बुरा हो जाएगा। करेक्ट, तो इसमें उसका भी दोष नहीं है, Correct. ठीक है, क्योंकि अब उसकी नेचर है, वो Correct. जो उसने देखा है वो बनना चाहता है ना। तो फेक तो पूरी दुनिया ही है, क्योंकि Correct. ज्ञान नहीं है। करेक्ट। और आई थिंक लोगों को डुअलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है। आई अंडरस्टैंड कि हर इंसान को नहीं दिखाना कि वो दुखी है, हर इंसान को नहीं दिखाना कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, बिकॉज हमको अनफॉर्चुनेटली बचपन से सक्सेसफुल, फेल नहीं होना है, पास ही होना है, बेस्ट ही रहना है, यही सिखाया गया है। फेलियर, लॉस, डिसरिस्पेक्ट, इज्जत ही कमानी है, डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकती, ये गलत चीजें सिखाई है। जबकि दोनों आर अ पार्ट ऑफ द गेम, दे आर अ पार्ट ऑफ द प्ले ऑफ लाइफ, दोनों मिलेंगे। इसलिए फेकनेस ज्यादा बढ़ रही है, बिकॉज पीपल आर सुपरफिशियली लिविंग ड्रीम्स ऑन सोशल मीडिया और इन देयर लाइफ, थिंकिंग मेरे पास ये सारी चीजें हैं, मैं सक्सेसफुल भी हूँ, मेरे प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, मुझे इज्जत भी मिल रही है। बाकी का पार्ट वो दिखाना नहीं चाहते। फाइन, फेयर इनफ, अगर आप दिखाना नहीं चाहते, बट खुद के लाइफ में जो मैं देखती हूँ, बिकॉज आई एम अ कोच, वो जो घुट घुट के जीते हैं, देयर टू पर्सनैलिटीज, पता है, अंदर लाइफ कुछ और चल रही है, बाहर कुछ और। बाहर आपको लग रहा है दे आर सो हैप्पी, दे हैव इट टुगेदर, बिहाइंड द सीन्स दे आर द मोस्ट डिप्रेस्ड, अनहैप्पी पीपल आई नो, इनसिक्योर। कभी मिलो तो होठ अलग है, किसी के आंख अलग है, किसी के चीक्स अलग है, किसी की नाक बदल चुकी है, इतनी इनसिक्योरिटी। Chalo, that is also duality. Maybe you can be a deep person and then have this absolutely shallow side in you who wants to change features every time. But I just feel that fakeness is genuinely increasing and we are believing and buying the fakeness. That is the problem. I think agree. वो Yeah. मेरे को लगता है problematic हो जाता है, because आपका measuring scale फिर वो इंसान के फेक लाइफ से हो रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सही बात है। दैट इज अ प्रॉब्लम। कभी आए गए दिन आप डिप्रेशन के बारे में सुन रहे हो, सुसाइड के बारे में सुन रहे हो, सो मच। मतलब जो इंसान इतना खुश दिख रहा है सोशल मीडिया पे, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स, है ना। Truly. तो मुझे लगता है कि ये जो डिप्रेशन भी है, इसका मेन रीजन अगर हम ट्राई करें समझने कि व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड अ डिप्रेस्ड पर्सन, तो मुझे लगता है कि एक तो अधूरी ख्वाहिशें, जो डिजायर्स हम कहीं ना कहीं चाहते हैं वो नहीं पूरे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो पास्ट में चलती है कि ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, यू नो, पास्ट में, और ये कर लेंगे तो लाइफ अच्छी हो जाएगी, वो कर लेंगे तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो बोथ वेज, मतलब आप एक कहीं ना कहीं ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हो जहां पे ना पास्ट आपके हाथ में ना फ्यूचर आपके हाथ में। तो एक डिप्रेस्ड पर्सन के लिए जब ये इतना यूज्ड टू हो जाता है ना इस वर्ल्ड में जीना, तो बातें भी वैसी हो जाती है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में ना ये नहीं हुआ होता ना तो मेरी जिंदगी अच्छी होती, अगर ये नहीं हुआ होता ना मेरी जिंदगी में तो अच्छी होती। अब यहीं पे तो मास्टर जी का ज्ञान काम आया, जब उन्होंने ये बताया कि भाई जो हो रहा है ना, दैट इज योर पास्ट कर्मा, डू नॉट ब्लेम एनीवन, डू नॉट ब्लेम एनीवन, इट इज योर ओन डीड, आपने वो की है, आज वो आप भोग रहे हो। अगर आप उसको एक्सेप्टेंस में कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, किसी ने किया, बुरा किया, फाइन फाइन, उतनी एक एक्सेप्टेंस पावर अगर आप में आ जाए कि आप हर चीज को स्वीकार कर लो, तो भगवान आपका फ्यूचर अच्छा ही करेगा। बिकॉज आपको किसने भेजा है, जिस क्रिएटर ने भेजा है वो आपका टेक केयर नहीं करेगा। तो सारी इनसिक्योरिटी ना अपने आप निकलने लग गई जब वो एक्सेप्टेंस आ गई अंदर से कि नहीं यार, आई नीड टू एक्सेप्ट, आई डोंट हैव टू ब्लेम एनीवन। अगर मैं ब्लेम कर रहा हूं मींस मैं कहीं ना कहीं आई एम नॉट अबाइडिंग बाय द रूल्स ऑफ माय ओन क्रिएटर, जिसने मुझे बनाया है। तो इससे मुझे लगता है कि अगर एक डिप्रेस्ड पर्सन ये थोड़ा सा एक समझ जाए, या हर एक पर्सन ये थोड़ा सा समझ जाए कि मुझे अपनी लाइफ को, पास्ट को एक्सेप्ट करना है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, मैं एक कमजोर पर्सन नहीं हूं, मैं था, बट आज मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे क्रिएटर स्ट्रांग बनाएगा नेचुरली, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया ना उस चीज को। करेक्ट, भागी नहीं उससे, भागना नहीं है उससे, भागना नहीं है, या फिर दूसरों को ब्लेम नहीं करना, वो एक अलग ही नेगेटिव सोच है जो आपको कोई उसका It's easier to blame the other person ना, who wants to take the brunt of I need to do my inner work, किसी को नहीं चाहिए वो, उसने मेरे साथ गलत किया, is much easier to do, much easier, and I think when I was coaching a series of people जो बहुत डिप्रेशन में थे, आई थिंक 2 साल पहले, और मैं मास्टर जी से भी मिली थी, एंड साइकोलॉजिकली मैंने स्टडी किया था कि स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के हिसाब से डिप्रेशन इज डीप रेस्ट ऑफ अ रोल,
कि I'm so tired playing this role, whether it's a daughter or a sister or a mother or a brother or a son. I'm not getting what I want from this. I'm not getting happiness from this. I feel used. I feel abused. So wo role starts going into a deep rest. And when I spoke to Master Ji about it, he said, that's right, because you are playing roles in life. But we take those roles very, very seriously in our life. Without realizing कि मेरी इच्छा थी, मुझे किसी की बेटी बनना था. Let me experience it for the duality it is, कि अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, आपको प्यार भी मिलेगा, आपको नफरत भी मिलेगी, आपकी इज्जत भी होगी, आपकी बेइज्जती भी होगी. That's very normal. So people are getting caught in their roles and not being able to play it well because of the fakeness around. Right? किसी को देख के या जो भी कंपैरिजन आ जाता है, मेरी जिंदगी वैसी होती है, वो तो अच्छा कमा रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स जो हैं यार वो इतना कमा रहे हैं, उनकी शादी हो गई है, मेरी नहीं हुई है. One day we will do a mini pod just on relatives. Yeah. अच्छा, तो फिर I think this calls to end this podcast, but with this last question, I believe that ये जो आप भी ये जो सोच बता रहे हो या ये जो सोच, ये कहीं ना कहीं कल्टिवेट हुई है. ये सोच थी नहीं, ये कल्टिवेट हुई है, जिससे हमारा पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं बढ़ता गया है, बढ़ ही रहा है. एंड वो हम आपको बताएंगे जरूर कि ये सोच कैसे कल्टिवेट हुई है, एंड आप भी कैसे इन पॉजिटिव थॉट्स में रह सकते हो, अपने जीवन को बेटर बना सकते हो, लाइफ को बेटर बना सकते हो. बट बिफोर दैट, वन लास्ट क्वेश्चन आई थिंक यू वर टू आस्क. The question is, if you really want to deal with your relationships, if you really want to deal with this fakeness around, if you really want to deal with the pressure your family gets to marriage, the main topic here is how do you cultivate it, which is spirituality in daily life, right? Would you like to say something on that? Absolutely. I think a spiritual journey is very misunderstood. पहले तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जब मुझे भी ये चीज स्ट्राइक करी थी बिकॉज ऑफ मास्टर जी, एंड मास्टर जी से पहले भी बहुत सेंट्स हुए हैं जिनके बारे में मुझे अभी पता चला. संत तुकाराम जी, संत नामदेव, महाराष्ट्र में वे वी लिव इन, आई डोंट नो, हमें पता भी नहीं होगा शायद. संत नामदेव, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, जब आप इनके स्टोरीज पढ़ो, सिखिज्म गुरु नानक देव जी की स्टोरी पढ़ो, साईं बाबा की स्टोरी पढ़ो, तो ये सारी जो स्टोरीज है ना, आपको एक मैसेज देना चाह रही है, ह्यूमैनिटी को एक मैसेज देना चाह रही है. वो मैसेज है क्या? अब हमने मैसेज जो है ना, हमने सिर्फ बाहर का मैसेज ले लिया कि ये ऐसे कपड़े पहनेंगे तो हम स्पिरिचुअल हैं, भगवा कपड़े पहनेंगे तो हम स्पिरिचुअल हैं, या पीले कपड़े पहनेंगे तो हम स्पिरिचुअल हैं. बट अगर आपकी सोच में कहीं ना कहीं हेट्रेड है, जेलसी है, कंपैरिजन है, ईगो है कि मैं स्पिरिचुअल हो गया, ये भी तो मैं स्पिरिचुअल हो गया, तो स्पिरिचुअलिटी तो आपको जीरो करने आई है लाइफ में. मुझे ये पता चला कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खाली हो जाना, अंदर से आपको खाली होना, मुक्त होना. मुक्त मतलब कि यहाँ पे माइंड में जो है आपके, जैसे आपका सीन गया तो वो माइंड में आपको ट्रबल नहीं कर रहा है, इतनी फ्लो स्टेट में आप जी रहे हो. एंड ऑन अ डीपर स्टेट, जो मास्टर जी ने बताया ही, एनलाइटनमेंट, जो इस लाइफ का लक्ष्य है कि आप अपनी सोल को उस परम चेतना से, उस जो चला रही है पूरे यूनिवर्स को, उससे वननेस के लिए आप आए हो. ये तो आपका एम है मेन. अगर आप इसको फुलफिल नहीं करोगे तो आप जो भी कर लो आप फेल हो. करेक्ट. तो अब इसको आप स्पिरिचुअलिटी बोल लो, योग बोल लो, आप इसको एनलाइटनमेंट बोल लो, जर्नी तो एक ही रहेगी ना, ह्यूमैनिटी की जर्नी, कि कैसे आपको एक ह्यूमन, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना है, जो जैसे यहाँ से इवॉल्व होता है तो वो गॉड बन जाता है, क्योंकि सबसे परफेक्ट गॉड ही तो है, राइट? एग्जैक्टली. तो ये चीजें बहुत ही मिसअंडरस्टूड हैं, मिथ्स हैं सारे, कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. जो रूल्स हैं वो कभी भी एक स्पिरिचुअल पर्सन को कोई भी रूल जो है वो नहीं लागू होता है. वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रोल वे करता है, प्यार. वो प्यार हो जाता है. करेक्ट. और ये प्यार मास्टर जी से जब ये मिला है ना, जब कहीं ना कहीं एक जो उनका नाम भी है माँ, MAASTER, नेगेटिव टू पॉजिटिव, टेकिंग यू टू गॉड, तो वो मदरली लव उनसे रिसीव हुआ. और उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे गुरु मानो या मुझे कुछ ये करो. He just said that listen to a few lectures, वाणीज, जो उनके प्राण है. He said 30 days में I had no looking back in my journey. What about you? I think that's what I deeply realized with मास्टर जी, कि स्पिरिचुअलिटी खुद की मैल को साफ करना है. जैसे आपने बोला, अंदर से खाली होना है. आप खाली कैसे होगे जब वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज या बातें आपने अपने अंदर बसा लिए हैं, उसका घर बना लिया है.
उसको खाली करना है, उससे फ्री होना है. सो व्हाट हैपेंस इज कि मास्टर जी इतने सेंट्स, इतने सारे भगवान, इतने ब्यूटीफुल बातें करते हैं ऑन हिज चैनल, एंड all the stories that he gives over there, मैं रोज एक घंटा सुनती हूँ. And I realize कि really it is not about believing in God but obeying them, and obeying them by actually following the rules they have given to the game. क्योंकि भगवान में विश्वास करना बहुत ईजी है, मगर भगवान जो बोल के गए हैं उस पर चलना उतना ही मुश्किल है. I know so many spiritual intellects who will tell you the laws of the universe, energy, blah blah blah, but they are so far away from it in behavior. वो ही है स्पिरिचुअलिटीज. अपनी मैल को साफ करना है, अपने पे रिफ्लेक्ट करना है, अपनी कमियां जाननी है, उसको प्यार से भरना है. एंड प्यार इज स्टोरीज ऑफ गॉड, इज स्टोरीज ऑफ परमात्मा. वही आपको आपकी आत्मा से मिला सकता है. एंड आई थिंक मास्टर जी जस्ट मेड द जर्नी सो इजी. One lecture a day, that's all you need to listen, and trust me, you'll meet a version of yourself that you didn't even know existed. Wow, it was amazing and insightful, I think, this episode. And for more such episodes, tune in into Mini pods with Master G's community.